اب ہم آتے ہیں ڈپلیکیٹ کی کمانڈ کی طرف کہ ڈپلیکیٹ ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے. ڈپلیکیٹ کو ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ایک آبجیکٹ میرے پاس موجود ہے، یا فار ایگزامپل کوئی بھی کارڈ میں ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایک کارڈ تو ڈیزائن کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی میں 2-3 کارڈ اور ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ اسی ریکٹینگل کو میں دوبارہ یہاں سے ریکٹینگل لے لوں اور پھر سائز لے لوں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ کورل ڈرا میں وہ بندہ ڈیزائنر ہے، بہترین ڈیزائنر ہے جو کم وقت میں زیادہ ڈیزائننگ کر سکے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس آبجیکٹ کی ڈپلیکیٹ نکالوں، یا اسی سائز کا دوسرا آبجیکٹ مجھے چاہیے. تو ایڈٹ میں آگے آپ اس کی ڈپلیکیٹ نکال سکتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں جتنی بھی ڈپلیکیٹس آپ نکالنا چاہیں اس کی نکال سکتے ہیں. ایک ایڈٹ کے مینیو سے بھی آپ اس کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر شارٹ کٹ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ میں آپ کنٹرول ڈی کی مدد سے بھی اس کی ڈپلیکیٹ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم کلون کی طرف. تو ایک بات یاد رکھیں، ڈپلیکیٹ اور کلون میں کافی زیادہ فرق ہے. کام تو دونوں ایک ہی کرتے ہیں ڈپلیکیٹ نکالنے کا، لیکن فرق بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک 2 آبجیکٹ ڈرا کرتا ہوں، اس پہلے آبجیکٹ کی ڈپلیکیٹ میں نکالتا ہوں ڈپلیکیٹ کمانڈ کے ذریعے، اس دوسرے آبجیکٹ کی ڈپلیکیٹ میں نکالتا ہوں کلون کی آبجیکٹ کے ذریعے، یعنی کلون کے آپشن کے ذریعے. اب دیکھیں دونوں نے سیم ٹو سیم کام کیا، ڈپلیکیٹ نکال دی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ڈپلیکیٹ جو ہے کنٹرول ڈی کی شارٹ کٹ سے جو ڈپلیکیٹ آپ نکالتے ہیں وہ بار بار آپ کے لیے ڈپلیکیٹ نکالتا ہے، لیکن کلون جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ڈپلیکیٹ نکالتا ہے. پھر بھی اس میں کافی زیادہ فرق ہے. اب فار ایگزامپل یہی آبجیکٹ میں نے کلون کے ذریعے ڈپلیکیٹ کیا، اس آبجیکٹ کو میں نے ڈپلیکیٹ کے ذریعے ڈپلیکیٹ کیا. اب یہ جو ڈپلیکیٹ کے ذریعے ڈپلیکیٹ ہوا ہے، اس کے جو اوریجنل آبجیکٹ کو میں کلر دیتا ہوں تو دیکھیں ڈپلیکیٹ میں کوئی بھی چینجز نہیں آتی ہے. دیکھیں ڈپلیکیٹ کسی قسم کی چینجز نہیں کرتا، لیکن اگر کلون کے ذریعے جو ڈپلیکیٹ میں نے نکالا ہے اس کے اوریجنل کو میں کلر دوں گا تو آٹومیٹیکلی دیکھیں وہ کلون جو ہے نا وہ بھی کلر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اگر کلر باکس آپ کو شاید اسکرین پہ نظر نہ آ رہا ہو تو ونڈوز میں جا کے یہاں سے کلر پیلٹس میں آپ اس کے کلر بھی اضافی لے سکتے ہیں، اور کلر بھی. اگر یہاں سے بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو سمپل یہاں پہ ٹولز میں دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے، فل کلر. فل کلر سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں اوکے کرتا ہوں. فل کلر کی شارٹ کٹ آپ کے پاس ہے شفٹ F11، شفٹ F12 اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ فل کلر کے لیے. یہ دیکھیں اوکے کر دیں، شفٹ F11 ہے. اوکے یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بتائے گا اس کی شارٹ کٹ. دیکھیں شفٹ F11 بتا رہے ہیں، یہاں پہ کلک کریں فل کلر ڈائلاگ باکس پہ، تو یہاں سے بھی آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. مختلف پیلٹس بھی موجود ہیں، پیلٹس کی مدد سے بھی آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کلک کر کے آپ اس کو اوکے کر دیں تو آٹومیٹیکلی یہی کلر جو ہے دونوں آبجیکٹ میں پلیس ہو جائے گا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں کلون کی مدد سے جو بھی ڈپلیکیٹ نکالی گئی ہو، اوریجنل آبجیکٹ کو آپ بڑا کریں تو دیکھیں وہ جو کلون کے ذریعے ڈپلیکیٹ نکلی ہے آٹومیٹیکلی وہ بھی بڑا ہوتا رہے گا. یعنی جو بھی چینجز آپ اوریجنل آبجیکٹ میں کریں آٹومیٹیکلی کلون کے ذریعے جو ڈپلیکیٹ نکالی گئی ہے اس آبجیکٹ میں بھی وہی چینجز ہوں گی. اگر فار ایگزامپل آپ اس کی آؤٹ لائن چینج کر دیں تو کلک کریں آؤٹ لائن پہ، یہ آؤٹ لائن ٹول ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اسی آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کو تھوڑا سا بڑھا دوں. یہ دیکھیں آپ کو آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے نا، تو جیسے ہی اس آؤٹ لائن کی وڈتھ کو میں زیادہ کروں گا آٹومیٹیکلی وہ کلون والی آبجیکٹ کی وڈتھ بھی زیادہ ہو جائے گی. کلک کریں اوکے. اب ادھر ہی آ کے میں اس کا کلر بھی چینج کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اوپر کلر موجود ہے. گول کرنا چاہتا ہوں، گول جس سٹائل میں بھی آپ لانا چاہتے ہیں دیکھیں وہی آبجیکٹ کو جو آپ ڈیزائن دے رہے ہیں کلون والے آبجیکٹ پہ بھی نمایاں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ اس کو بڑا کر دیں تو کلون کی مدد سے جو ڈپلیکیٹ نکالی گئی ہوگی وہ بھی آٹومیٹیکلی بڑی ہو جائے گی. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو کام آپ ڈپلیکیٹ سے کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل کنٹرول ڈی کی طرف سے آپ ایک ڈپلیکیٹ نکالیں، اوریجنل آبجیکٹ میں آپ جو بھی چینجز کریں گے وہ چینجز اس میں آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائے گا دوسرے آبجیکٹ میں. لیکن اگر کلون کی مدد سے آپ کوئی ڈپلیکیٹ نکالیں گے تو اس کی ڈپلیکیٹ پہ بھی وہی ایفیکٹ آپشن اپلائی ہو جائیں گے جو اوریجنل ڈاکومنٹ پہ یا اوریجنل آبجیکٹ پہ آپ نے لگائے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دوبارہ میں اس کو کلر ایک دفعہ پھر دے دیتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل جائے. دیکھیں اس کو میں یلو کلر دیتا ہوں تو دونوں آبجیکٹ کے آؤٹ لائن یلو کلر میں چینج ہو جائیں گے. سلیکٹ کریں، یہ دیکھیں آپ کو نمایاں نظر آ رہی ہیں اس میں چینجز. تو یہ تھا ہمارا ڈپلیکیٹ اور کلون کا انٹروڈکشن. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ کاپی فرام پراپرٹی پہ. تو کاپی فرام پراپرٹیز ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے ہمارے پاس. فار ایگزامپل ایک
ऑब्जेक्ट मेरे पास डिजाइन शुदा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूं। मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूं यहां पे। अब ऐसा होता है कि इस सर्कल की जो आउटलाइन है, इसका स्टाइल भी मुझे पसंद है और इसका कलर और इसका साइज मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऑटोमेटिकली ऐसी कमांड मौजूद हो कि इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जो है इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। तो मैं अगर चाहता हूं कि इसकी आउटलाइन इसको इंसर्ट हो जाए, तो आप फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, आता हूं कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये क्या कहता है, आउटलाइन। इसका मतलब ये है कि इसका जो आउटलाइन का स्टाइल है ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाए, ना कि कलर। ओके करते हैं। इस तीर के निशान को मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली देखें वही ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इसमें मुंतकिल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर भी ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाए, तो दोबारा आ जाए कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी की तरफ, आउटलाइन कलर पे क्लिक करें और यहां पे क्लिक करने के बाद आप इसको उसमें देखें तब्दीली आपको नजर आ रही होगी। ये कलर ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो गया है, उसी जगह पे उसी आउटलाइन पे मुंतकिल हो गया है। दोबारा आते हैं एडिट पे, कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी ली। ये देखें अगर आप चाहते हैं कि फिल कलर भी उसमें चला जाए तो ओके करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखें फिल कलर को भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी को आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं हम्माद, इसको मैं साइज भी दे देता हूं, साइज भी ये देखें थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ये देखें दोबारा आता हूं, मैं इसको स्टाइल देता हूं। उसके बाद मैं इसका साइज बड़ा छोटा कर देता हूं। ये देखें यहां से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को आउटलाइन भी देता हूं। अच्छा एक बात याद रखें, आउटलाइन की शॉर्टकट है हमारे पास F12। कीबोर्ड के ऊपर आपको F12 नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करें, आउटलाइन आप यहां से भी ले सकते हैं। यहां से आए, इसको कलर दिया, यहां से कलर दे दें, कुछ स्टाइल वगैरह भी दे दें। मैं आता हूं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिजाइन करता हूं। ये देखें इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और साइज बढ़ा दें, ओके करें। फिल कलर की तरफ आते हैं, तो फिल कलर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से। ये देखें, ये देखें टू कलर यहां से इस्तेमाल किए। यहां से देखें इसको डिजाइन को चेंज करता हूं, या प्रीसेट में हमारे पास बेशुमार डिजाइन कलर स्टाइल पड़े हैं, ओके कर। तो देखिए ये तमाम इफेक्ट जो है मैंने फिल कलर में, फिल कलर की मदद से इसको दे दिए। थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करते हैं कि नुमाया नजर आए। ये देखें ओके। अब देखिए ये हमाद के नाम, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसमें मैंने कंप्लीट इसको कलर भी दिया, आउटलाइन का स्टाइल भी दिया, आउटलाइन का कलर भी दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और वर्ड लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कास्मोस। अब मैं चाहता हूं कि जो कास्मोस का टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ये हमाद के ऊपर जितने भी फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किए हैं, आउटलाइन, कलर, स्टाइल, सब कुछ, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली तमाम स्टाइल जो है इस कास्मोस पे भी अप्लाई हो जाए डायरेक्टली। तो आप जिस वर्ड पे, जिस टेक्स्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट कर लें। ये देखें कास्मोस को मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि हमाद के जितने भी स्टाइल है वो कास्मोस पे अप्लाई हो जाए। तो एडिट के मेन्यू में आ जाए, कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी पे। अब इस पे देखिए चेकबॉक्स पहले से आना है। अगर आप आउटलाइन भी लेना चाहते हैं तो आउटलाइन पे भी क्लिक रखें, वरना चेकबॉक्स को ऑफ कर दें तो आउटलाइन पेन नहीं लेगा। आउटलाइन का कलर भी आपको चाहिए फिल। और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसका साइज, इसका स्टाइल, तमाम के तमाम जो है वो कास्मोस में मुंतकिल, यानी इस ऑब्जेक्ट की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं तमाम की तमाम कास्मोस पे अप्लाई हो जाएंगी। तो क्लिक करके आप इसको ओके करें और इसी एरो को इस नाम के ऊपर जिसका स्टाइल आप कास्मोस पे लाना चाहते हैं उसको क्लिक कर दें। देखें अब देखें आप, इसका साइज 125.31 है। अब कास्मोस के साइज को देखें तो वो भी इस पे चेंज हो गया। वही स्टाइल जो आपको यहाँ पे कास्मोस को सेलेक्ट करते हुए मैं दिखा रहा हूं, हमाद को सेलेक्ट करें तो वही स्टाइल यहाँ पे भी आएगा। तो देखें कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमें एक फायदा ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट एक जिसके ऊपर आपने कोई स्टाइल, कोई डिजाइन, कोई कलर अप्लाई किए, आप चाहते हैं कि हू बहू वही जितने भी स्टाइल आपने इस पे अप्लाई किए किसी दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाए, तो सिंपल एडिट में आके कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें पहले से जिस पे आपने अप्लाई करना है। तो उसको सेलेक्ट करके आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये था आपका कॉपी फॉर्म प्रॉपर्टी का मुकम्मल और कंप्लीट इंट्रोडक्शन और इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने का तरीका। अब उसके बाद आते हैं एडिट मेन्यू में हम सेलेक्ट ऑल में। तो देखिए एक बात याद रखें, सेलेक्ट ऑल में आपको चार मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चार मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है गाइडलाइन, चौथा है नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब आपको कंप्यूटर यानी कोरल ड्रा ये कहता है कि आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं। इसमें हो सकता है मैंने बहुत से ऑब्जेक्ट ऐड किए हों,
इन तमाम ऑब्जेक्ट को मैं इकट्ठा डिलीट करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। एक बात और याद रखें, कोरलड्रा टेक्स्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, तमाम को ऑब्जेक्ट समझता है। तो देखें ऑटोमेटिकली उसने सबको सेलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड में डिलीट की मदद से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या एडिट में आके यहां से डिलीट कर दें। तो देखिए तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट गायब हो गए। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, ऑब्जेक्ट्स की बजाय मुझे जितना भी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखें मुख्तलिफ टेक्स्ट की मैं डुप्लीकेट्स निकाल के रख देता हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम के तमाम टेक्स्ट को डिलीट करें ये सेलेक्ट करके, या मैं इन तमाम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, कलर चेंज करना चाहता हूं। अब एक एक को क्लिक करके मैं सेलेक्ट करूं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। मैं चाहता हूं कि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाए। तो एडिट में आए, सेलेक्ट ऑल, क्या कहता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। यहां से आगे इसका साइज छोटा करना, देखें तमाम के तमाम जितने भी टेक्स्ट हैं वो छोटे हो गए हैं। देखें ये देखें, ये देखें, ये आउटलाइन ज्यादा है इस वजह से ऐसे नजर आ रहे हैं। देखें दोबारा आगे बड़ा कर दें, देखें 200 कर दें, देखें 100 कर दें, यहां से इसका स्टाइल चेंज कर दें। देखें तो मतलब ये देखें उसने तमाम के तमाम सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद आते हैं हम, क्या कहता है गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस क्या चीज होती है? देखिए पहले मैंने आपको शुरू में बताया हो शायद, या आगे आप डिजाइनिंग में देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हैं, और बाकायदा गाइडलाइंस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी आपको आगे बताया जाएगा। बेसिकली गाइडलाइंस होती कहां पे? ये देखिए आपको रूलर बार नजर आ रहा है, यहां पे एरो आप मूव करें तो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है छोटी, जो एरो के साथ मूव कर रही है। हल्का सा रूलर बार की तरफ आके सेलेक्ट करके आप इसको नीचे मूव करें, देखिए आपको गाइडलाइन नजर आ रही होगी। बेसिकली गाइडलाइन इस्तेमाल होती है टेक्स्ट की सेटिंग के लिए। देखिए मैं डुप्लीकेट्स निकालता हूं, ठीक है, और इसकी मदद से इसको रिपीट करता हूं, देखिए सिलेक्शन को। तो इससे फायदा ये होता है कि आप टेक्स्ट को यहां पे बिल्कुल सीक्वेंस से सिलेक्शन करके यहां पे ला सकते हैं। देखिए फासले को बराबर करने के लिए हम टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बात हो रही थी गाइडलाइंस की, मैं चाहता हूं कि जितनी भी गाइडलाइंस यहां पे मौजूद हैं, आप एक को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हो सकता है ये गाइडलाइंस 100 हो, ज्यादा हो, कम हो, बहुत ज्यादा हो। अब एक एक को सेलेक्ट करके डिलीट करने से हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम वेस्ट होता है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम को एक ही दफा में सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूं। तो एडिट में आए, क्या कहता है सेलेक्ट ऑल, क्या लिखा हुआ है गाइडलाइन, क्लिक करें तो क्या कहता है ऑटोमेटिकली यहां पे आपको बता रहा है सेलेक्ट ऑल गाइडलाइंस। क्लिक करें तो तमाम की तमाम गाइडलाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। एडिट में आके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडिट में, सेलेक्ट ऑल पे, ये क्या कहता है नोड्स। नोड्स किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करके देता हूं। इस टेक्स्ट की आउटलाइन में थोड़ी सी खत्म कर देता हूं कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। देखिए ये हमारा लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके आप यहां पे देखिए व्हाइट किस्म के डॉट आपको नजर आ रही होंगी, ये व्हाइट कलर की, इसको हम नोड कहते हैं। क्या? नोड। अब नोड को सेलेक्ट करने से हमें फायदा ये होता है कि HAMAD ये जो वर्ड एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, इसके दरमियान में हम फासला पैदा कर सकते हैं। अगर यहां से सेलेक्ट करूंगा तो पूरा वर्ड ही बड़ा हो जाता है। एडिट में आता हूं, सेलेक्ट आर गाइडलाइन, सॉरी नोड सेलेक्ट किया। क्या? नोड। नोड को सेलेक्ट करने के बाद यहां से थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूं, देखें ये देखें एक एक लफ्ज के अंदर फासला पैदा हो रहा है। ये देखें, ये देखें, दोबारा आप इसको यूं भी कर सकते हैं, यूं भी ला सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि एक को थोड़ा सा नीचे ले आऊं या ऊपर स्टाइल के, तो पहले बाहर क्लिक करें, जब ये नोड वाइड हो जाए तो इस वाइड को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले, ये देखें, ये देखें, दोबारा ऊपर भी ले जा सकते हैं, सेलेक्ट करके यहां भी ला सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको यूं भी ले जा सकते हैं। मतलब ये कि आप किसी भी किस्म की सेटिंग चेंज स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। देखें दोबारा इसको यूं करके लें, ये देखें ये स्टाइल में चेंज होगी। मतलब ये कि टेक्स्ट में आप गैप भी पैदा कर सकते हैं। दोबारा एडिट में आते हैं तो सेलेक्ट ऑल के बारे में तो मेरा ख्याल है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि सेलेक्ट ऑल में ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, टेक्स्ट, गाइडलाइन और नोट्स। तो ये है आपके सेलेक्ट ऑल में जितने भी ऑप्शन है इनका इंट्रोडक्शन और कंप्लीट प्रैक्टिकली काम।